Right, Ji. So last time we started our discussion on structs, and we covered some of the basic stuff on structs, and I'll just recap some of the stuff that we did, and then we'll move on to some of the advanced topics and uh, further topics that we'll be discussing. Okay, so structs primarily are user-defined data types, and they are primarily a complex data type where you can combine various instances of data types together to define a specialized form. And we did this example of point struct where where you want to define a point, and in order to define a point you have to define two coordinates for that. If it is a 2D point, then those 2 points in the 2D space can be represented by x and y, and point struct can have two features or two variables, x and y, and the slide which you see on the screen represents the way you define a point with these two features or variables. Then we also said that structs could also have their own functions, and you can define those functions within the body of the struct. And for that, we said that, okay, this is how you can define or modify the struct point by adding a function within the body of the struct point. And then outside the struct, so this is the definition part which comes outside the main function. So generally this is defined outside the main function, and then within the main function you can define instances of these of this object point that we have defined, and these instances are defined with the help of the dot operator. Sorry, by using the keyword which you have defined, point, followed by the name of that instance which you want to define. So here point first is representing the first instance of of the struct point. And just to emphasize that this word here first can be replaced by any other name. A, B, C, X. X has already been defined, so P, Q, R, or anything. So this could be point P or point Q or point Z or point X or point ABC. So you can define anything. So this is the definition of the instance of an object point. And then you can populate and because point has two features, therefore first would also have two features, x and y. So you can define the x feature of first by using the dot notation as shown in this slide here, put it equal to some value, and then point y. We also discussed this is if you don't initialize these variables, then there will be junk values present in these variables, and then if you don't override these junk values in your program, these junk values could pose problem when you are using these values. So therefore we said that, okay, what could be the way to initialize these instances of objects, and there came the concept of constructors. Constructors are similar to functions, but they are not exactly functions, because there are some distinct differences between defining a function and defining a construct. So construct you can consider to be a specific type of a function, but then from a standard function it has some differences. And what are those differences? The first difference is that the name of this constructor or construct function is the same as the name of the object. So अगर आपने object point define किया है, तो constructor का भी नाम जो है वो point होगा. And if you write any other name, then it becomes a standard function. So you can't really call it a constructor in that case. And here you actually, so it's a function. So in the body of this function, which is called the constructor, you can initialize the features or
the variables. When I say features, I am referring to the variables that you have defined in the body of the variable, in the body of the construct. G, constructors are only used for initializing the variables, so it doesn't perform anything else. I'll come to this point कि आप multiple constructors define कर सकते हैं. Yes, you can define multiple constructors in the body of the struct, but then you have to have in a way some sort of distinction between those two constructors. For example, दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर जो कि मैंने आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसकी एक ही डेफिनेशन होगी. आई मीन ये सिर्फ एक ही हो सकता है इस तरह का कंस्ट्रक्टर. हाँ, इसकी एक और फॉर्म हो सकती है विच इज कॉल्ड अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. तो आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं इन द बॉडी, लेकिन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का भी नाम जो है वो वही होगा जो कि ऑब्जेक्ट का नाम है. तो नेमिंग कन्वेंशन जो है कंस्ट्रक्टर चाहे किसी तरह का भी हो वो similar होगा. So override, overloading is possible, और distinction उसमें आपको arguments की बेस के ऊपर करनी पड़ेगी. G, so in that case you need to have a parameterized constructor, Eras. You can't have this type of a default constructor कि अगर आपके पास दो instances हैं of the struct point, कोई दो instances आपने define कर दी हैं और आप उनको दो different values of x and y से initialize करना चाहते हैं, तो उस सूरत में आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं यूज करेंगे, आप उसमें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को यूज करेंगे. सो आई विल कम टू दैट पॉइंट ऑफ पैरामीटराइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर्स इन अ व्हाइल. और लास्ट टाइम हमने डिस्कस तो किया था, लेकिन आई विल जस्ट गो ओवर इट अगेन टुडे in somewhat more detail. So here is a complete definition of a struct with a constructor. अच्छा, कायम का क्वेश्चन ये है कि कैन वी हैव ओनली वन कंस्ट्रक्टर जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और वन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है, और उसकी मैं आपको कुछ बाद में एग्जांपल्स भी बताऊंगा. ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही तरह का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज़ करें, ठीक है, आप मल्टीपल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स यूज़ कर सकते हैं. लेकिन इस एग्जांपल में हम एक ही पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. तो ये एक एग्जांपल है. इसमें आपको कुछ फीचर्स भी नज़र आ रहे हैं, यानी वेरिएबल्स भी नज़र आ रहे हैं, एक फंक्शन भी नज़र आ रहा है जो कि प्रिंट के नाम से है, और एक कंस्ट्रक्टर नज़र आ रहा है. और यहाँ पे अगर आखिरी सेकंड लास्ट लाइन पे देखें, आपने एक इंस्टेंस डिक्लेयर किया है पॉइंट का, और जैसे ही आपने वो इंस्टेंस डिक्लेयर किया है और अब डिक्लेरेशन के बाद अगर आप वैल्यूज़ को प्रिंट करवाएंगे तो यू विल फाइंड आउट कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आपने लिखी हैं वही वैल्यूज़ प्रिंट होंगी, यानी एक्स की वैल्यू 0 प्रिंट होगी और वाई की वैल्यू 0 प्रिंट होगी. अच्छा, फातिमा का क्वेश्चन ये है कि कैन वी डिफाइन फंक्शंस इनसाइड द कंस्ट्रक्टर्स. जनरली आप इनिशियलाइजेशन करते हैं, और अगर आप इनिशियलाइजेशन किसी सेपरेट फंक्शन के थ्रू करना चाहते हैं तो देन दिस माइट बी पॉसिबल, बट इट शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है, उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है. नाइमा का क्वेश्चन ये है कि व्हाट इफ वी हैव 3 फीचर्स इन अ स्ट्रक्ट एंड वी डिफाइन कंस्ट्रक्टर्स विद 2 पैरामीटर्स, वुड द थर्ड वन वुड अज्यूम अ डिफॉल्ट वैल्यू. और इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा था कि आप मल्टीपल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स भी डिफाइन कर सकते हैं. तो आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एक्स और वाई के लिए लेट्स से मैं 2 पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन कर सकता हूँ. एक में मैं एक्स की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दूँ विद सम वैल्यू, और एक में वाई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दूँ. और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में ऐसा भी डिफाइन कर सकता हूँ जिसमें मैं फर्ज करें एक और फीचर है, तो सो दैट्स पॉसिबल, ठीक है जी. Okay, so that's possible. So we can come.
to this point later on. Can functions contain parameters? I mean, if you are referring to those functions which are within the constructor, as I told you, yes, of course, functions जो होंगे, you can have those parameters within the for the functions, but as I told you that we'll not go to that extent. We'll use a simple constructor with simple initialization, and first we'll say you'll make yourself expert in using these constructors. By the way, latest जो इसके IDEs आते हैं जिसमें आप C++ प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, उसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं ना, वो आपको कई दफ़ा मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करने पड़ते. जैसे यहाँ पे तो मैंने पॉइंट कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दिया ना, तो कुछ एनवायरनमेंट्स ऐसी हैं जिसमें यू डोंट हैव टू डिक्लेयर और यू डोंट हैव टू राइट दीज कंस्ट्रक्टर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द स्ट्रक्ट और द क्लासेस. होता ये है कि जैसे ही आप एक स्ट्रक्ट या फॉर दैट पर्पस एक क्लास, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, एज सून एज यू डिफाइन a struct, the default constructor is automatically defined. ठीक है, आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कई IDEs के अंदर, कई इन्वायरमेंट्स के अंदर आपको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है. सो इट्स अ बिल्ट इन थिंग दैट कम्स विद द स्ट्रक्ट. सो यहाँ पे हम उसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन कुछ इन्वायरमेंट्स के अंदर आपको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं होती. बट एनीवे वी विल नॉट गो टू दैट एक्सटेंट, लेकिन कुछ इन्वायरमेंट्स के अंदर ऐसा पॉसिबल होता है. Okay, so यहाँ पे this is what would happen. अच्छा, then we come to the parameterized constructor. और parameterized constructor का मतलब क्या था? Parameterized constructor का मतलब ये है कि फर्ज करें आपने एक point construct define कर दिया. अब मैं चाहता हूँ कि point construct में जो instance उसका मैं कोई define करूँ, कोई भी instance define करूँ, उसकी value 0 से initialize ना हो, या जो default constructor के अंदर जो मैंने values रखी हुई हैं, जो भी वैल्यूज मैंने रखी हुई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर, उससे इनिशियलाइज ना हो, बल्कि मैं खुद उन्हें कोई एक्सटर्नल वैल्यूज दे के उन्हें इनिशियलाइज कर सकूं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है पॉइंट फोर्थ, और फोर्थ को मैं इनिशियलाइज करना चाहता हूँ विद x वैल्यू 2 एंड y वैल्यू 3, जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से डिफरेंट है. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में तो ये 0 से इनिशियलाइज होंगे, जो कि इससे ऊपर वाली लाइन में अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता हुआ नजर आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं थर्ड को प्रिंट करता हूँ तो x और y की वैल्यू 0 इनिशियलाइज होगी. लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने ये किया है कि मैंने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग टाइप चीज की है, जिसमें मैंने क्या किया है कि आई हैव डिफाइंड अ कंस्ट्रक्टर जिसमें मैं खुद एक्सप्लिसिटली कुछ वैल्यूज दे सकता हूँ और उनसे अपने कंस्ट्रक्टर अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकता हूँ ऑफ द इंस्टेंसेस व्हिच आई हैव डिफाइंड. सो फोर्थ एक इंस्टेंस है ऑफ पॉइंट, और उसमें अगर आप देखें तो 2 और 3 से ये इनिशियलाइज हो रहा है. तो अब जब मैं फोर्थ प्रिंट करूंगा तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y इक्वल्स टू 2 and 3 respectively. So this is what parameterized constructor is. So this is the default constructor that I have, and this is the parameterized constructor that I have, and these actually fall within the body of the struct. And as I told you, ये complete struct जो है ये आप अपने main program से by define कर सकते हैं, और वहीं पे define करते हैं, और main program के अंदर आप जो है you can define instances and then you can use those instances to perform other activities. So जैसे ये जो lines हैं they'll come in your main program, these point third and point fourth, और ये जो पूरे का पूरा structure है, this structure actually comes is written outside your main program. ठीक है, okay. अच्छा, I've used this word overloading. So अगर किसी को नहीं पता कि overloading क्या होती है तो you need not to worry about that. आप यही समझें कि and we'll have a detailed discussion of this overloading later on. ओवरलोडिंग का मतलब सिंपल टर्म्स में ये है कि आपने दो फंक्शंस डिफाइन किए और उन दोनों फंक्शंस के नाम जो हैं वो सेम है. ठीक है, जैसे मैं दो प्रिंट फंक्शन डिफाइन कर दूं, लेकिन दोनों फंक्शंस की जो फंक्शनैलिटी है वो डिफरेंट होगी. अच्छा, नाम सेम है तो फिर कंफ्यूजन ये आएगी कि मैं
जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सा प्रिंट फंक्शन कॉल किया, ठीक है, वो उसके आर्ग्यूमेंट्स से पता चलेगा, ठीक है। तो अगर लेट्स से यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर के नाम अगर आप देखें तो ये भी पॉइंट कंस्ट्रक्टर है और ये भी पॉइंट कंस्ट्रक्टर है, दोनों के नाम सेम है, लेकिन इन दोनों में से कॉल कौन सा होगा वो कॉल स्टेटमेंट से पता चलेगा। तो पहले वाला जो कॉल थी ऑफ पॉइंट वो थी विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो दिस वुड रेफर टू दिस, क्योंकि दिस इज द पॉइंट कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, तो ये ऑटोमेटिकली इसको कॉल करेगा। और यहाँ पे एक और कॉल है पॉइंट की, लेकिन यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो विद आर्ग्यूमेंट्स वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि जब मैंने इंस्टेंस डिक्लेयर किया तो साथ मैंने आर्ग्यूमेंट्स भी डिफाइन कर दी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ओवरलोडिंग इज। एनीवे, नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस सारा, we'll डिस्कस दिस लेटर ऑन इन डिटेल इस चीज को। जी हसन, वी कैन डिफाइन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विदाउट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दैट इज परफेक्टली फाइन, उसको जरूरत नहीं है आपको डिफाइन करने की, आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर स्ट्रेट अवे डिफाइन कर सकते हैं। We define instances of struct in other functions instead of, yes, you can define instances of function in other functions also, वो that is possible main function में, लेकिन वो जो functions हैं those functions could be defined either you can define them outside your main, as I told you कि structs जब आप define करते हैं, पता नहीं इस पे बात हुई है या नहीं हुई, बट एनीवे स्ट्रक्ट अप आप डिफाइन करते हैं तो दे आर कंसिडर्ड पब्लिक, दैट मींस कि यू कैन एक्सेस देम, यू कैन कॉल देम, यू कैन राइट डाउन देयर इंस्टेंसेस एनीवेयर इन योर प्रोग्राम, ठीक है। तो आप किसी और फंक्शन के अंदर भी स्ट्रक्ट को कॉल कर सकते हैं, स्ट्रक्ट का इंस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं। इट्स नॉट रियली नेसेसरी कि आप नेम के अंदर ही करें, आप किसी फंक्शन के अंदर भी इसको कर सकते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि आप एक स्ट्रक्ट के अंदर एक और स्ट्रक्ट को कॉल कर सकें, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल, सो वी विल कम टू दैट पॉइंट लेटर ऑन। द पर्पस ऑफ, अच्छा जी, मानव का क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ कॉलिंग 4231 फोर्थ डॉट प्रिंट इज डूइंग द सेम। नहीं, फोर्थ डॉट प्रिंट जो है, फोर्थ डॉट प्रिंट जो है ना वो वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है, ठीक है जी मानो। और पॉइंट फोर्थ 2,3 जो है वो फोर्थ को इनिशियलाइज कर रहा है, दोनों में फर्क। नीचे वाला एक फंक्शन कॉल है, ऊपर वाला जो है ना वो एक आप ये समझ लें कि इनिशियलाइजेशन या डिक्लेरेशन ऑफ एन इंस्टेंस ऑफ अ स्ट्रक्ट है, ठीक है। तो इसलिए वो डिफरेंट है। अच्छा जी, सो जी काइम, आई ऑलरेडी probably I've answered, instead of default constructor can't we just write int x inside of, we had this discussion last time काइम के जी, अच्छा ये ऐसा करेंगे तो फिर उसके अपने consequences हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसे ही आप इंस्टेंस डिफाइन करें उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिफाइन हो जाए, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उसके लिए हमें जो है वो या तो बार बार स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी, या दूसरा ये है कि आप जो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स हैं आप उनको इनिशियलाइज करने जा रहे होंगे, तो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज नहीं करते, दैट मीन्स कि यहाँ पे हम उनको इनिशियलाइज नहीं करेंगे, राइट। यहाँ पे इनिशियलाइज करने का मतलब जो है ना वो लास्ट टाइम वी हैड अ डिस्कशन ऑन दिस, आई होप यू विल रिकॉल दैट डिस्कशन। If we define parameterized construction only and call it using the first method, point third, it will, yes, I mean it will, this constructor will not be called Faraz. पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए आपको आर्गुमेंट्स पास करने हैं, अगर आप आर्गुमेंट्स पास नहीं करते तो उस सूरत में आपके लिए प्रॉब्लम है, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ढूंढ रहा होगा, राइट। Okay, point third only initializing third as point data type, don't we need to write नहीं, आपने गलत लिख दिया है इसको, एक्सप्लिसिट कॉल, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉइंट जो है वो कंस्ट्रक्टर है और उसकी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की एक्सप्लिसिट कॉल जो है वो इस तरीके से नहीं होती है अहमद, जिस तरीके से आपने लिखा है थर्ड डॉट पॉइंट से ये कॉल नहीं होगा। इसको पॉइंट थर्ड जैसे ही आप लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए पॉइंट फोर्थ, सो जैसे ही आप एक पॉइंट का एक इंस्टेंस डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके साथ ही आपको बताना पड़ेगा कि इसके साथ कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होना है, राइट।
तो जब मैं पॉइंट थर्ड लिखता हूँ तो दिस वुड ऑटोमेटिकली रिफर के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, और जब मैं पॉइंट फोर्थ 2,3 लिखता हूँ तो दिस वुड ऑटोमेटिकली टेल द सिस्टम कि जी अब आपने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। तो एक्सप्लिसिट कॉल जैसे आपने लिखी है ना थर्ड डॉट पॉइंट, ये नहीं, इस तरह से नहीं करेंगे। इट्स नॉट अ फंक्शन कॉल like you have just said, you have to like call them in a different way, इसलिए नाम इसके different रखे, same रखें। no need to call a constructor explicitly because हाँ ठीक है, we put it in the only need to, yes you are right Ibrahim। अच्छा, if you write fourth two, आपने एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया है तो उस सूरत में your constructor requires 2 arguments, ठीक है। तो इस तरह से नहीं होगा कि वो एक ही वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा। इसके लिए आपको जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर जो डेफिनेशन आपने कंस्ट्रक्टर की लिखी है ना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसमें भी एक आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। बाय द वे इसको करके देखिएगा, हो सकता है कुछ उसके अंदर प्रोविजन इस तरह की हो, लेकिन जब आप ओवरलोडिंग करते हैं तो इस तरह से वो फंक्शन कॉल्स नॉर्मली नहीं वो करता, ठीक है। Okay, so let's move on to another important aspect of this, and this is, I mean, you have to keep this thing in mind. Okay, structures are all public, as I've already told you. Everybody and anybody can call a constructor or उसके variable को call कर सकता है from anywhere from in your program, ठीक है। इसमें प्राइवेसी वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उसको अभी तक जो हमने डिस्कस किया है कि आप किसी चीज़ को प्राइवेट कर दें, दैट मीन्स कि मेन प्रोग्राम में या कोई और फंक्शन उसको कॉल ना कर सके इसके पैरामीटर्स को, स्ट्रक्ट के फीचर्स को। तो इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर ऐसा होगा कि एनीबडी कैन एक्सेस, अभी तक जो हमने डिस्कशन की है, ठीक है। सो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। तो मेन प्रोग्राम के अंदर या किसी और फंक्शन के अंदर आप स्ट्रक्ट के किसी भी इंस्टेंसेस को डिक्लेयर कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ को ओवरराइट कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ को प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो रिस्ट्रिक्शन जो प्राइवेट डिक्लेरेशंस के साथ होती है, या लोकल वेरिएबल्स जो कि एक जिनका स्कोप जो है वो लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं है इस केस के अंदर। इसका स्कोप जो है वो ग्लोबल है of this you're right Ahmed, right। so in that case अभी जो हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किए हैं ना, तो वो आप जिस काम की तरफ रेफर कर रहे हैं उसके लिए यूजफुल नहीं होंगे। you will have to wait if you don't have to share your food with the खोखा cats, ठीक है। और वैसे भी जब आप ऑन कैंपस आएंगे तो ये पॉसिबल होगा। Okay, Ji. So let's move on, Ji. So let's start. Let's take another example. This is an example here, जो कि struct की example है, and we are defining a struct called person here. और person के कुछ features हैं, आपने उसकी date of birth जो है उसकी आपने define करनी है और person का नाम define करना है। तो these are the variables जो कि आपने define करने हैं person struct के अंदर। और if you look at this this struct here, तो यहाँ पे आपको एक default constructor भी नजर आएगा। So this is the default constructor, right? And this is not a parameterized constructor, ठीक है। This is a default constructor जिसमें आपने date, ये b day जो है that is the birthday, birth year, बर्थडे डे और बर्थडे मंथ, तो ये 3 वेरिएबल्स जो आपने डिफाइन किए हैं, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ को डिफाइन करते हैं, ये उस पर्सन के नाम को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे हमने प्राइमरीली क्या किया है कि उनको इनिशियलाइज कर दिया है थ्रू अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और डेट को हमने 00 से इनिशियलाइज कर दिया और नाम को नन से इनिशियलाइज किया है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो वेरी सिंपल thing here. So is there a better way of representing this?
आई मीन क्या हम इस रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं या नहीं बना सकते? अच्छा, यहाँ पे लिखा है वी कैन स्टोर, तैमूर का है पॉइंट के वी कैन स्टोर बर्थडे info in an array and use a loop to access it inside or writing separate statements. Fine, so this would make things bit more complex. आप एक array define करेंगे, फिर एक loop define करेंगे, फिर आप उसके अंदर, so that would make things more complex. So is there a easier way or a more neat representation of this struct? Okay, shorten the variable names. अच्छा ठीक है, shorten the variable names जो है that is also fine. लेकिन इससे आपके लाइन ऑफ कोड्स जो हैं वो तो कम नहीं हो रही होंगी ना इन एनी वे. और दूसरा ये है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो इस वक्त स्ट्रक्ट की नज़र आ रही है वो उतनी ही रहेगी ऑलमोस्ट. ठीक है, ज़्यादा नीट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी. शॉर्टन वेरिएबल नेम्स, नॉर्मली शॉर्टन वेरिएबल नेम्स जो होते हैं ना वो नॉर्मली यू डोंट डू दैट. बाय द वे लेट मी टेल यू, वेरिएबल नेम्स आप ऐसे रखें जो कि रीडेबल हों और जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकें कि ये आप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल मैं बर्थडे ईयर की बजाय मैं अगर एक्स लिख दूं यहाँ पे, तो इंट एक्स से किसी को नहीं पता चलेगा कि ये क्या है, सिर्फ जो प्रोग्राम कर रहा है उसी पता है. और जैसे अब मैंने डिफाइन किया ना, इससे सबको पता चल जाएगा कि जी मैं ईयर की बात कर. अच्छा, पॉइंटर्स की बात की हाशिम ने. लेट्स नॉट गो इनटू दैट साइड एट प्रेजेंट. अभी हम उसको नहीं करेंगे. द रीज़न फॉर दैट इज़ के वील कम टू दिस पॉइंट लेटर ऑन. लेकिन पॉइंटर्स वाला मसला नहीं है. अच्छा, लेट्स ठीक है जी. सो देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स दैट हैव कम अप. लेट मी जस्ट टेल यू कि यहाँ पे इफ यू लुक एट दिस स्ट्रक्ट वेरी केयरफुली, just look at these first three variables. These three variables are related to a single variable, and though or wo variable jo hai, you can relate it to a single variable. That variable is date of birth, right? So it's referring to a single say single date. एक डेट को रिफर कर रहे हैं. तो आप ईयर को सेपरेटली नहीं देख सकते, डे को सेपरेटली नहीं देख सकते, मंथ को सेपरेटली नहीं देख सकते. जब आपने डेट ऑफ बर्थ डिफाइन करनी है, इन तीनों को देखना पड़ेगा आपको, राइट? तो इसलिए व्हाट आई कैन डू इज दैट आई कैन टेक आउट दिस पार्ट हियर. ये जो है आई कैन टेक आउट दिस पार्ट फ्रॉम हियर, और इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग थ्री सेपरेट वेरिएबल्स इनसाइड पर्सन, what I can do is I can take out all these three variables, or in तीन variables, because they are referring to a single date in a year, so I can define a separate struct for these three. So I can define a struct. ठीक है, मैं एक struct define कर सकता हूँ और उस struct को मैं कहता हूँ date, और उस struct date के अंदर मैं ये तीन वेरिएबल्स डिफाइन कर देता हूँ. ठीक है, फाइन. तो मैंने क्या किया है कि इन तीन को उठाया, इन तीन का मैंने एक स्ट्रक्ट बना दिया, एक अलग से एक स्ट्रक्ट बना दिया, और उस स्ट्रक्ट को नाम मैंने दे दिया डेट. अब डेट जो है वो विदाउट ईयर, डे एंड मंथ आप डिफाइन नहीं कर सकते. डेट के अंदर आपको तारीख भी चाहिए, दिन भी चाहिए और ईयर भी चाहिए. ठीक है जी. ओके. अच्छा, इज इट ओके नाउ? ओके. तो वी डिफाइन अ सेपरेट स्ट्रक्ट हियर. बाय द वे आई स्टॉप्ड राइटिंग. मैंने वो स्क्रीन स्टक नहीं हुई थी, मैंने लिखना छोड़ दिया था. इट्स डिफिकल्ट टू राइट, इसलिए ऐसा लग रहा होगा. अच्छा, फाइन. तो इसका एक स्ट्रक्ट हमने बना दिया अलग से, डेट के नाम से एक स्ट्रक्ट बना दिया. और अब पर्सन के अंदर जो है ना, मैं ये तीन वेरिएबल्स अलग से करने की बजाय मैं क्या करूंगा कि इस स्ट्रक्ट पर्सन के अंदर एक और स्ट्रक्ट डिफाइन कर दूंगा, विच इज स्ट्रक्ट डेट, राइट? तो स्ट्रक्ट डेट मैं इसके अंदर डिफाइन कर दूंगा, और स्ट्रक्ट डेट की डेफिनेशन जो है वो मैं अलग से डिफाइन करूंगा. तो इस तरह से जो स्ट्रक्ट पर्सन की जो रिप्रेजेंटेशन है ना, दैट वुड बिकम मोर कंसाइज एंड मोर नीटर
रिप्रेजेंटेशन उसकी आ जाएगी। ठीक है जी। और उसकी एग्जाम्पल और उसका जो है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यू कैन हैव अ स्ट्रक्ट विद एन स्ट्रक्ट, राइट। अच्छा, वो आप डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, तो इट्स अ बिल्ट इन डेटा टाइप। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अपनी डेटा टाइप बना रहे हैं, आप डेट के अलावा कोई और नाम यूज करें, ठीक है। अच्छा, और फिर शीजा का क्वेश्चन ये है कि फिर हम उसे कॉल कैसे करेंगे? जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आई टेल यू कि उसको हम कॉल कैसे करेंगे। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो अब हमने क्या किया, तो इफ यू लुक एट दिस, यहाँ पे हमने क्या किया, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्ट्रक्ट, अ सेपरेट स्ट्रक्ट जो कि डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हियर इज द डेफिनेशन of the struct date. Date consists of, let's say, 3 variables. यहाँ पे ये जो है, this is the parameterized constructor for date, sorry, default constructor for date, और यहाँ से यहाँ तक this is the parameterized constructor for date, right? आप initialize कर सकते हैं इसको थ्रू डिफॉल्ट वैल्यू 00 से, या आप अपनी वैल्यूज दे के उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो ये आ गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर डेट, और ये आ गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर फॉर डेट, एंड दिस इज द फंक्शन विद इन दिस डेट कंस्ट्रक्ट व्हिच इज प्रिंटिंग द डेट, राइट। जी हसन, दिस इज बिट मोर, इट मेक्स इट लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये ज्यादा नीट रिप्रेजेंटेशन है। और उसमें एक फायदा इसका ये भी है कि आप डेट को ना सिर्फ पर्सन के कंस्ट्रक्ट में यूज कर सकते हैं, बल्कि डेट को आप किसी और कंस्ट्रक्ट का हिस्सा भी बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ कंस्ट्रक्ट दैट इज रिप्रेजेंटिंग डेट। अगर मैं पर्सन में इसको यूज करूंगा तो वो डेट ऑफ बर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और अगर मैं किसी एम्प्लॉई के कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ, ठीक है, तो वो हो सकता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो मैं इसी कंस्ट्रक्ट को किसी और कंस्ट्रक्ट का भी हिस्सा बना सकता हूँ विद डिफरेंट connotations. Okay, okay, just a minute, I'll be back in a minute. Okay, so you can define this new struct outside the main program, outside the person construct, ठीक है। और जो पर्सन कंस्ट्रक्ट आपने पीछे डिफाइन किया है वो आपने अलग से डिफाइन कर दिया, ये आपने अलग से डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये दो कंस्ट्रक्ट्स हैं। अब ये डेट कंस्ट्रक्ट जो है ना, दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू पर्सन कंस्ट्रक्ट, बट अगर कोई और कंस्ट्रक्ट्स भी आपने डिफाइन कर दिए, फॉर एग्जांपल आपने एम्प्लॉई का एक कंस्ट्रक्ट डिफाइन कर लिया, और एम्प्लॉई के कंस्ट्रक्ट के अंदर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, ठीक है, तो आप इसी कंस्ट्रक्ट को यूज करके आप एम्प्लॉई के अंदर भी डेट डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉई के अंदर जो डेट होगी वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी। पर्सन के अंदर यही कंस्ट्रक्ट जब आप कॉल कर रहे होंगे तो वो हो सकता है डेट ऑफ बर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो ये इसका फायदा है कि आपको दोनों स्ट्रक्ट, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई स्ट्रक्ट और पर्सन कंस्ट्रक्ट के अंदर, सॉरी, स्ट्रक्ट के अंदर आपको दो अलग अलग डेट्स जो है ना, या तो उनके 3-3 वेरिएबल्स आप दोनों में डिफाइन कर दें, विच इज़ फाइन, लेकिन एक तरीका ये है कि आपने उनको उठा के, डेट्स को उठा के एक कंस्ट्रक्ट में डिफाइन कर, एक स्ट्रक्ट में डिफाइन कर दिया, और फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन्हें कॉल करते जाते हैं, ठीक है जी। जी ठीक है, नंबर ऑफ कोड लाइन्स तो आपकी बढ़ गई हैं, लेकिन आप उसका फ़ायदा भी तो देखें। आपको डेट्स जो है वो बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जहाँ पे भी डेट डिफाइन करनी है, किसी मकसद के लिए भी डिफाइन करनी है, आपने सिर्फ एक इंस्टेंस ऑफ डेट डिफाइन करनी है, ठीक है। तो इसलिए ये उसका फ़ायदा है। अच्छा, एनीवे, लेट्स सी द कंप्लीट थिंग हियर, कैसे होगा। तो अब आपने कैसे डिफाइन कर, सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड नाउ। आपने एक स्ट्रक्ट डिफाइन किया, लेट्स से स्ट्रक्चर 1,
और फिर आपने एक स्ट्रक्चर 2 स्ट्रक्ट डिफाइन किया, और स्ट्रक्चर 1 का एक इंस्टेंस आपने डिफाइन कर दिया स्ट्रक्चर 2 के अंदर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर 1 ऑब्जेक्ट जो है दैट इज एन इंस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर 1 डिफाइंड विदन स्ट्रक्चर 2, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रक्ट विदन स्ट्रक्ट। और ये जो एप्लीकेशन अभी हमने देखी है ऑफ पर्सन, इसमें हम कैसे करेंगे, लेट मी जस्ट शो यू। ओके, सो दिस इज व्हाट यू विल बी डू। अब रिमेंबर, आपने डेट का एक कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्ट जो है वो पहले डिफाइन कर दिया होगा, ठीक है। आपने डेट का एक स्ट्रक्ट पहले डिफाइन कर दिया। अब आपने स्ट्रक्ट पर्सन डिफाइन करना है। तो स्ट्रक्ट पर्सन डिफाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इफ यू हैव अ लुक एट दिस, आपने क्या किया है कि डेट का एक इंस्टेंस आपने जनरेट किया है विदन द स्ट्रक्ट पर्सन, राइट, विदन द स्ट्रक्ट पर्सन। तो पर्सन कंस्ट्रक्ट के अंदर आपने डेट का एक इंस्टेंस डिफाइन कर दिया, राइट। अच्छा, ये यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब आपने स्ट्रक्ट पर्सन डिफाइन किया और उसके अंदर आपने डेट स्ट्रक्ट जो कि आपने पहले डिफाइन कर दिया है इन योर प्रोग्राम, यहाँ पे जब आप उसका इंस्टेंस डिफाइन करेंगे तो रिमेंबर, जब भी आप फ्रॉम आवर अर्लियर डिस्कशन, जब भी किसी स्ट्रक्ट का इंस्टेंस डिफाइन करते हैं तो उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो डेट के अंदर इफ यू रिमेंबर, डेट के अंदर हमने उसका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन किया था, ठीक है, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन किया था। तो जैसे ही आप इंस्टेंस ऑफ डेट डिक्लेयर करेंगे एनीवेयर इन योर प्रोग्राम, वेदर इट इज आउटसाइड another struct और within another struct, जहां पे भी आप डिफाइन करेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा अनलेस यू कॉल अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, अनलेस आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिट कॉल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, डेट डी जो है, डी इज एन इंस्टेंस ऑफ डेट, डी जो है दैट विल ऑटोमेटिकली कॉल द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जैसे ही आपने किया तो जो डेट्स की जो वैल्यूज हैं वो 0 0 सेट हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अब आप ये देखेंगे जो पर्सन का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, उसके अंदर पर्सन के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर अब आपने डेट पैरामीटर्स को इनिशियलाइज नहीं किया, क्योंकि डेट पैरामीटर्स अलग से इनिशियलाइज हो रहे हैं थ्रू इट्स ओन कंस्ट्रक्टर। सो डेट के अपना कंस्ट्रक्टर है और पर्सन का अपना कंस्ट्रक्टर है। तो जब आप डेट का कोई इंस्टेंस डिफाइन करेंगे तो डेट के वेरिएबल्स जो हैं वो इनिशियलाइज हो जाएंगे, और जब आप पर्सन का कोई इंस्टेंस डिफाइन करेंगे तो पर्सन के इंस्टेंसेस इनिशियलाइज हो जाएंगे along with the instances of date। क्योंकि जैसे ही मैं पर्सन का कोई इंस्टेंस डिफाइन करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा पर्सन पी, जैसे ही मैंने पर्सन पी यहाँ पे लिखा है, सेकेंड लास्ट लाइन ऑन दिस स्लाइड, जैसे ही मैंने यहाँ पे पर्सन पी लिखा है तो पर्सन पी क्या करेगा, पर्सन पी डिक्लेयर करेगा एक इंस्टेंस ऑफ स्ट्रक्ट पर्सन। अब स्ट्रक्ट पर्सन के अंदर जो है वो आप डेट का कंस्ट्रक्ट कॉल स्ट्रक्ट कॉल कर रहे हैं, तो इट विल कॉल द स्ट्रक्ट ऑफ डेट, और डेट के जितने भी पैरामीटर्स हैं दे विल गेट इनिशियलाइज्ड, राइट। और फिर पर्सन का अपना कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और पर्सन का जो वेरिएबल जो आपने इसके अंदर इनिशियलाइज किए हैं वो इनिशियलाइज हो जाएंगे। तो नेम इनिशियलाइज हो जाएगी और डेट इनिशियलाइज हो जाएगी। डेट इनिशियलाइज कैसे होगी, थ्रू द कंस्ट्रक्टर ऑफ स्ट्रक्ट डेट, और नेम इनिशियलाइज कैसे होगी, थ्रू द कंस्ट्रक्टर ऑफ स्ट्रक्ट पर्सन, राइट। और यहाँ पे आप प्रिंट स्टेटमेंट इसकी देखें। प्रिंट स्टेटमेंट, ये जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया है यहाँ पे मुझे डेट को प्रिंट करने के लिए मैंने
प्रिंट फंक्शन कॉल किया है डी डॉट प्रिंट. अब नाउ यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड. डी डॉट प्रिंट का मतलब ये है कि ये प्रिंट फंक्शन वो होगा जो कि आपने डी के साथ एसोसिएट किया. और डी के साथ कौन सा प्रिंट फंक्शन एसोसिएट हुआ है? द वन दैट यू हैव डिफाइंड इन डेट, राइट. तो पहले वो प्रिंट फंक्शन कॉल होगा जो कि डेट में डिफाइन किया है थ्रू दिस लाइन, और फिर आपने इस प्रिंट फंक्शन के अंदर ये कहा है कि नेम को भी प्रिंट कर दो, तो नेम भी प्रिंट हो. जी तैमूर, आपने डी डॉट प्रिंट को ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होगा. आपने पर्सन में प्रिंट फंक्शन के अंदर इसको एक्सप्लिसिट कॉल देनी है डी डॉट प्रिंट करके. जब आप डी डॉट प्रिंट करेंगे इसका मतलब ये होगा कि ये प्रिंट फंक्शन कौन सा कॉल करना है जो कि डी इंस्टेंस के साथ एसोसिएटेड है. और डी इंस्टेंस कौन सा है? इट इज एक्चुअली एन इंस्टेंस ऑफ स्ट्रक्ट डेट. तो डेट के अंदर जो आपने प्रिंट फंक्शन डिफाइन किया है यहाँ पे वो कॉल हो रहा होगा. ठीक है. सो दिस वुड टेल द सिस्टम वेरी क्लियरली कि डी डॉट प्रिंट का मतलब ये है कि प्रिंट फंक्शन वो वाला कॉल करना है जो कि डी के साथ एसोसिएटेड. ओके. सो फिर जब आप पी डॉट प्रिंट करेंगे, पी डॉट प्रिंट क्या करेगा? पी डॉट प्रिंट ये करेगा कि वो इस प्रिंट स्टेटमेंट, इस प्रिंट फंक्शन को कॉल करेगा. और ये प्रिंट फंक्शन क्या कर रहा है? ये प्रिंट फंक्शन पहले डेट के प्रिंट फंक्शन को कॉल कर रहा है और फिर वो ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा. ओके. ओके. सो नाउ let me just come to your questions before I move on. ठीक है जी. There are few questions. Let me start. अच्छा, डेट कंस्ट्रक्टर डेट को इनिशियलाइज कर देगा 0 से. जी जी यस अब्दुल्ला, इट विल इनिशियलाइज एवरी डेट with 00 वैल्यू. अगर आपने नहीं करना तो अगर आप वो पिछली स्लाइड्स में देखें अब्दुल्ला, तो आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर फॉर डेट सेपरेटली डिफाइन कर सकते हैं, which I have done that. I'll just show you in a while. Won't this give the default date? जी, ये प्रिंट स्टेटमेंट डिफॉल्ट डेट दे देगा आपको. ठीक है. डेट विल बी इनिशियलाइज्ड विद 0. फाइन. सो इन दिस वे फाइन का क्वेश्चन है, इंस्टेड ऑफ हैविंग to manually initialize variables for person, it will be automatically initialized because of the date instance. Yes, you are right. Mahaz ka hai, how will we pass date to variables in date from the main function? Data to variables. Acha, theek hai. I'll come to this question, Mahaz, in a minute. अच्छा, कायम का क्वेश्चन है जी, डेट इज डिफरेंट स्ट्रक्ट आउटसाइड ऑफ द मेन, सो इट विल प्रोबब्ली डू इट थ्रू अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इन डेट. अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज मोर ऑफ अ कमेंट. ठीक है, आप पैरामीटराइज्ड या नॉन पैरामीटराइज्ड दोनों कंस्ट्रक्टर्स यूज कर सकते हैं डेट के लिए. एज आई टोल्ड यू कि आपने आउटसाइड द मेन डेट स्ट्रक्ट डिफाइन करना है और पर्सन कंस्ट्रक्ट डिफाइन करना है. अब आपको पर्सन के अंदर डेट की जरूरत है, तो आप डेट का एक इंस्टेंस जो है वो पर्सन के अंदर डिफाइन करते हैं. दैट्स व्हाट यू हैव डन. ठीक है. और फिर डेट के अंदर जो भी आपने कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन किए हैं, दे विल बी कॉल्ड डिपेंडिंग अपॉन कि आप उन्हें एक्सप्लिसिट कॉल देते हैं या नहीं देते. डू वी नीड टू इंक्लूड, तैमूर का क्वेश्चन है, डी डॉट प्रिंट इन द फंक्शन. और हाँ जी, वो आपको जब भी आपने फर्ज करें डेट अलग से भी प्रिंट अगर आपने करनी है तो आपको डी डॉट प्रिंट को ही कॉल करना है. हाउ विल यू एलोकेट डेट फॉर डिफरेंट इंस्टेंसेस फॉर स्ट्रक्ट? अच्छा जी, उस पे भी आते हैं. अच्छा, डिफरेंट इंस्टेंसेस के लिए आप अगर डिफरेंट डेट इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं ना, तो आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ डेट कॉल करेंगे रादर देन डी डॉट, रादर देन राइटिंग डेट डी. आप डेट डी के आगे ब्रैकेट्स के अंदर तीनों डेट्स, तीनों वैल्यूज डाल देंगे जो कि आपको चाहिए. ठीक है. तो इस सूरत में आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल दे रहे होंगे. सो वी कैन आल्सो मेक एन इंस्टेंस ऑफ डेट इन द कंस्ट्रक्टर ऑफ पर्सन. कंस्ट्रक्टर ऑफ अ पर्सन जो है वो इंस्टेंस वहाँ पे डिफाइन करने की क्या जरूरत है? ठीक है, वहाँ पे आपने इंस्टेंस डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है. दैट वुड कॉम्प्लिकेट थिंग्स. What if you need to change all
नेम स्पेसिफिक इन वन कोड ऑफ लाइन, जी दैट इज आल्सो पॉसिबल, वो भी मैं आपको बताता हूँ लेटर ऑन सारा कि आप कैसे कर सकते हैं. व्हाट हैपेंस, व्हाट डज पी डॉट प्रिंट. अच्छा, पी डॉट प्रिंट जो है ना वो देखें, पर्सन जो है, पी जो है वो किसका इंस्टेंस है, पर्सन का. तो जब मैं पी डॉट प्रिंट करूंगा तो वो ये कौन सा प्रिंट फंक्शन कॉल करेगा, जो आपने पर्सन के अंदर डिफाइन किया है. ठीक है जी. तो पी डॉट प्रिंट, ये जो लास्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, पी डॉट प्रिंट, ये जो है ये कॉल करेगा फंक्शन ये वाला फंक्शन कॉल होगा, राइट. लेकिन इस फंक्शन के अंदर आपने एक और प्रिंट फंक्शन कॉल किया हुआ है जिसको आपने डी डॉट प्रिंट कहा है. डी डॉट प्रिंट का मतलब ये है कि इस प्रिंट फंक्शन के अंदर you have done an explicit call to another print function जो कि date से associated, right? So I hope this is clear. If not, then you can ask the question again. अच्छा जी Zain, you can ask the question. अगर आपने, you can unmute yourself. Yeah. I wanted to ask ऐसे सर हम लोग डेट के जो पैरामीटराइज्ड फंक्शन है उसको कैसे कॉल करेंगे, मतलब अच्छा ठीक है, वो भी मैं आपको आपको इफ यू रिमेम्बर पैरामीटराइज्ड फंक्शन का आप कैसे कॉल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे है ना, ये डेट डी आपने लिखा है ना, तो डेट डी के आगे यू जस्ट राइट डाउन ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर आप वो वेरिएबल्स जो कि आपको 3 वेरिएबल्स चाहिए ना उनकी इनिशियलाइजेशन, वो आप यहाँ पे पास कर देंगे तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. तो सर मेन से कैसे पास करेंगे, मेन से पर्सन पी के बाद ब्रैकेट डाल के लिखेंगे आगे? नहीं, मेन में आपको कॉल करने की अभी जरूरत नहीं है, ये आपने पर्सन के अंदर ही करना है जो भी करना है, क्योंकि आपने डेट को एसोसिएट करना है पर्सन के साथ. ठीक है. तो मेन के अंदर अगर आप करेंगे तो वो अलग से होगा, यानी वो जो है वो पर्सन के साथ एसोसिएटेड नहीं होगी डेट. अगर आप पर्सन के साथ कोई डेट एसोसिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग एसोसिएट करना चाहते हैं या डेट ऑफ बर्थ एसोसिएट करना चाहते हैं, तो पर्सन के स्ट्रक्ट के अंदर डेट के इंस्टेंस डिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज वो पर्सन के साथ एसोसिएट नहीं होगी. ठीक है जी. अच्छा, व्हाट इफ वी डोंट मेक द प्रिंट फंक्शन इन दिस, कैन वी डायरेक्टली, जी बिल्कुल, यू कैन डायरेक्टली कॉल इट, जो कि डेट का फंक्शन है वो आप कॉल कर सकते हैं. फर्ज करें वो कॉल कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सप्लिसिट कॉल होगी, थ्रू पर्सन कॉल नहीं होगी. ठीक है ना. एक्सप्लिसिट कॉल टू द अदर कंस्ट्रक्ट इंडिपेंडेंटली होगी. ठीक है. स्ट्रक्चर डेट इन द मेन सेपरेटली, बिल्कुल हो सकता है, सेपरेटली भी हो सकता है, जो आपका था, जहाँ से आपका क्वेश्चन था. अच्छा जी फहद. जी सर. Sir, I wanted to ask that could you please go over the logical flow of the statement person P in the main program when we write person P, what exactly does happen, what exactly happens? I'll do that. जी हाशिम, आपका क्वेश्चन था. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमने शुरू में प्रोग्राम डिफाइन किया था, डेट ऑफ बर्थ होगी, ईयर मंथ डेट सारा कुछ होगा, लेकिन अगर हम जब स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे तो उसके लिए तो सारों के लिए वही वैल्यूज हो जाएंगी, इवन अगर हम उसको पैरामीटराइज भी डिक्लेयर करते हैं. सारों के लिए क्या मतलब? सर अगर हम एक डेट पैरामीटराइज देते हैं, समझे 1 जनवरी 2020, तो वो सारी पूरी क्लास ये स्ट्रक्चर के लिए नहीं हो जाएगी? जी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब भी आप आएगा ना तो सबके लिए सेम वैल्यू हो जाएगी, और बाद में यू कैन ओवरराइट दोस वैल्यूज. नहीं, तो ओवरराइट किस तरह करेंगे? अगर पैरामीटराइज भी करते हैं तो फिर वो पूरी क्लास को नहीं लग जाएगी? नहीं, पूरी क्लास को नहीं लगेगी. आपने पूरी क्लास का अगर आपने करना है ना, इफ देयर आर 100 स्टूडेंट्स, तो आपने 100 इंस्टेंसेस ऑफ पर्सन डिफाइन करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इन द क्लास इज एन इंस्टेंस ऑफ पर्सन. ठीक है. तो सर इसकी डेट किस तरह सेट होगी? हाँ, तो आपने फर्ज करे एक आपने किया पर्सन से, फॉर एग्जांपल पर्सन फहद आपने किया. ठीक है. जब आपने पर्सन फहद लिखा तो साथ ही आपने जब आपने ये उसमें किया है तो आप डेट डी जो आपने पर्सन के अंदर उसका इंस्टेंस कॉल किया है ना,
ठीक है ना, उसको यू कैन ओवरराइड दैट, और उसके लिए वील कम टू लेटर डिस्कशन, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे आपने उसको इनिशियलाइज करना है, ठीक है, और किस तरीके से करना। लेकिन अभी उसका आसान तरीका ये है कि आप जो है वो पर्सन इंस्टेंस को कॉल करें, फिर डेट इंस्टेंस को कॉल करें, और फिर आप उसकी डेट को डिफाइन करें, और ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं, ठीक है। हर इंस्टेंस के लिए अलग अलग आप कर सकते हैं। उसका एक और तरीका भी है, और जो कि मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी द सिंपल आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि यस, दिस इज पॉसिबल। आप हर इंस्टेंस के लिए अलग अलग डेट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। आई विल जस्ट शो यू, इफ नॉट टुडे मे बी लेटर ऑन, या अभी टाइम मिला तो वील डू दैट, कि किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर ये था, अच्छा लेट मी जस्ट गो ओवर द क्वेश्चंस। जी, दिस इज हार्ड, दिस इज लिटिल हार्ड कोडिंग, लेकिन क्वेश्चन इज कि इससे आपका जो है ना वो, अगर आपने कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स अगर आप लिख रहे हैं तो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप इसको कर सकते हैं। हाँ, इसके कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन वंस यू अंडरस्टैंड दिस देन आई थिंक देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम। यूजर टू एंटर देयर डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, ठीक है। इसका भी मैं आंसर आपको करता हूँ। हाउ कैन वी एसोसिएट अ डिफरेंट डेट विद अ पर्सन? जी, दिस इज सेम क्वेश्चन, आई विल कम टू दिस इन अ व्हाइल। जी, I wanted to confirm that we can write this outside the main, or to use the struct inside the main. If you are talking about the struct definitions, तो वो तो outside the main program ही आएंगी, ठीक है। और instances आप main program के अंदर call कर सकते हैं, if I have correctly understood your question. If not, तो you can write down again, ठीक है, or raise your hand and ask the question again. अच्छा जी, if we are calling person and date separately in the main for now, then should we remove print dot from the print function? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सेपरेटली कॉल कर रहे हैं तो दैट वुड बी अ सेपरेट कॉल, ठीक है। डेट की अलग कॉल जाएगी और पर्सन की अलग कॉल जाएगी। हाँ, जब पर्सन की कॉल जाएगी तो उसके अंदर, क्योंकि डेट का इंस्टेंस भी मौजूद है, तो इसलिए डेट भी इनिशियलाइज उसके अंदर होगी। अच्छा जी, सो आई थिंक डी बाई से नहीं, ये जो आपने लिखे ना शयान, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि डी जो है ना, डी इज एन इंस्टेंस ऑफ अ स्ट्रक्ट, ठीक है। तो आप डायरेक्टली सी आउट डी अगर आप करेंगे तो वो नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा कि इसके किस वेरिएबल को आप आउटपुट पे लेना चाह रहे हैं, ठीक है जी। ओके, सो लेट मी जस्ट go over this again, if there is a confusion here, so I'll just recap this. This is, even if it takes a little bit more time, I think it's worth it. Okay, so what we have done is I'll just revise everything from here. Before that, I'll just answer Taimur Hassan's question. When calling the first instance in the main function, do we have to pass the parameters for date within the call? अच्छा, ठीक है जी, इसके ऊपर भी आते हैं और आपको बताते हैं कि ये मेन फंक्शन के अंदर कैसे कॉल होगा। अच्छा, यहाँ पे what we have done here is कि I think the concept should be clear कि हमने ये जो 3 पर्सन का जो स्ट्रक्ट हमने बनाया, उसमें डेट को जो था, what we have done is कि डेट को उठाया और इसका हमने एक अलग से स्ट्रक्ट बना दिया, और इस स्ट्रक्ट के अंदर हमने इसका अपना कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है। इसका जी हफ्सा, I'll do that जी, I'll do that. I'll just show you the way this is done in the code, in the environment. Just wait for a minute please. अच्छा, इसका एक अलग से हमने स्ट्रक्ट बना दिया, और नाउ इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज 3 different variables, what we'll do is कि we'll define another structure for this date separately outside your main program, और फिर पर्सन के अंदर वो डेट
स्ट्रक्ट का एक इंस्टेंस डिफाइन कर देंगे, डेट स्ट्रक्ट का एक इंस्टेंस डिफाइन कर देंगे हम यहाँ पे, राइट। एंड हाउ डू यू डू दैट? यहाँ पे लेट्स से मैंने डेट का एक स्ट्रक्ट डिफाइन कर दिया, तो उसके लिए व्हाट आई विल डू इज कि आई विल जस्ट राइट डाउन लेट्स से डेट डॉट डी, और सॉरी डॉट नहीं आएगा, सॉरी ये डॉट नहीं है, I'll just ओके। सो डेट डी आपने डिफाइन किया, तो डेट डी आपने डिफाइन कर दिया, अलग से एक आपने इसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया, और यहाँ पे इस सारी स्टेटमेंट को रिप्लेस कर दिया डेट डी से। आपने जब डेट डी से इसको आपने रिप्लेस कर दिया, तो व्हाट वुड दैट मीन? दिस वुड मीन कि आपने एक स्ट्रक्चर के अंदर, एक स्ट्रक्ट के अंदर एक और स्ट्रक्ट जो है वो आपने डिफाइन किया है हियर, ठीक है। सो लेट्स से कि ये डेट का स्ट्रक्ट आपने अलग से डिफाइन कर दिया, इसका अपना कंस्ट्रक्टर है, इसके अपने 3 वेरिएबल्स हैं, इसके अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है, इसका अपना एक प्रिंट फंक्शन भी है, राइट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट हैज बीन डिफाइंड सेपरेटली। और अब हम क्या कर रहे हैं, और पर्सन का आपने अलग से डिफाइन किया हुआ है, अब हमने ये किया है कि पर्सन स्ट्रक्ट के अंदर एक इंस्टेंस ऑफ डेट जनरेट कर दिया। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्ट पर्सन विल बी मॉडिफाइड। अब उसमें 3 सेपरेट नेम्स करने के बजाय हमने ये कर दिया, और इसका अपना एक कंस्ट्रक्टर है पर्सन का जो अपना कंस्ट्रक्टर है वो सिर्फ उन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेगा जो कि डेट में शामिल नहीं है और आप पर्सन के अंदर शामिल हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग नेम जो है वो डेट के अंदर शामिल नहीं था, लेकिन पर्सन के अंदर शामिल है। सो देयरफॉर आपने पर्सन कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने सिर्फ नेम को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब सिर्फ नेम को इनिशियलाइज क्यों किया, डेट को क्यों नहीं इनिशियलाइज किया, डी को क्यों नहीं? क्योंकि डी को जब आपने डिक्लेयर किया है वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएगा कंस्ट्रक्टर के साथ इसी पॉइंट के ऊपर, राइट। और फिर जब आपने प्रिंट फंक्शन किया है, प्रिंट फंक्शन के अंदर जो है वो आपने एक एक्सप्लिसिट कॉल दी है टू द प्रिंट फंक्शन जो कि डेट स्ट्रक्ट के अंदर डिफाइन हुआ है। तो डी डॉट प्रिंट जो यहाँ पे है, डी डॉट प्रिंट, दिस इज एन एक्सप्लिसिट कॉल टू this function here, ठीक है। so this is an explicit call जो मैंने वहां पे दी है, this is an explicit call to this function, right। इसलिए वो d dot print उसमें लिखा गया, right, okay। और इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ प्रिंट करना चाह रहे हैं तो वो आप एक्सप्लिसिटली यहाँ पे लिख सकते हैं। डी डॉट प्रिंट क्या करेगा, डी के जितने वेरिएबल्स हैं उनको प्रिंट कर देगा, और सी आउट नेम जो है वो पर्सन में जो वेरिएबल स्ट्रिंग नेम के साथ डिफाइन किया उसको प्रिंट कर देगा। अच्छा, यहाँ तक तो चीज़ें जो है ना वो क्लियर हैं। सो लेट्स सी जी, I'll just do that जी, मैं उसके अंदर कर देता हूँ आपको एक और। तो पर्सन पी जब आपने किया, लेट मी जस्ट गो ओवर दिस फ्लो ऑफ द कोड फॉर अ वाइल। तो व्हाट विल हैपन जब मैंने पर्सन पी डिफाइन किया है, व्हाट विल हैपन हियर, लेट्स जस्ट सी कि मैंने जब पर्सन पी डिफाइन किया है तो पी इज एन इंस्टेंस ऑफ पर्सन। ये क्या करेगा, ये जैसे ही आप इसका इंस्टेंस डिफाइन करेंगे तो इस इंस्टेंस के साथ जो है वो इसका पैरामीटराइज्ड इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और इसका कंस्ट्रक्टर जब आपने कॉल किया है तो उसमें नेम है तो नेम इनिशियलाइज हो जाएगी, राइट, ठीक है। तो नेम इनिशियलाइज हो जाएगी, और नेम के साथ साथ जैसे ही आपने पर्सन डिफाइन किया है
तो an instance of date will be generated, so D will also be generated. ठीक है, name initialize होगा और D will be generated, so name will be initialized और D instance will be created. अब जैसी D instance create होगा date D के साथ, तो because D is also an instance of struct date, तो अब यहाँ से struct date जो है वो कॉल होगा. struct date जब आप कॉल करेंगे तो date का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर फॉर डेट विल बी कॉल्ड. ठीक है, सो कंस्ट्रक्टर फॉर डेट जो आपने कॉल किया है, कंस्ट्रक्टर फॉर डेट, उसके अंदर क्या चीज़ें इनिशियलाइज हो रही होंगी? 3 चीज़ें इनिशियलाइज हो रही होंगी. एक उसका डे इनिशियलाइज हो रहा होगा, मंथ इनिशियलाइज हो रहा होगा और ईयर इनिशियलाइज हो रहा होगा. सो पी इंस्टेंस जब आप क्रिएट करेंगे, नेम इनिशियलाइज होगा और डी क्रिएट होगा और डी के अंदर डी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कि डेट स्ट्रक्ट के अंदर है, राइट. और उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं दी. मैंने सिंपल, अगर आप इफ़ यू रिमेंबर हेयर, कि यहाँ पे मैंने सिर्फ डेट डी लिखी है. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट विल हैपन. अच्छा, अब पी इंस्टेंस के साथ एक नेम नन एसोसिएट हो जाएगी और जो डिफ़ॉल्ट डेट है वो एसोसिएट हो जाएगी. दिस इज़ व्हाट विल हैपन. अच्छा, ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट विल हैपन हेयर. अगली लाइन के अंदर पी डॉट प्रिंट के अंदर क्या होगा? पी डॉट प्रिंट के अंदर ये होगा, पी डॉट प्रिंट क्या करेगा? पी अपना प्रिंट फंक्शन कॉल करेगा एंड दिस इज द प्रिंट फंक्शन जो कि वो कॉल होगा. अपना प्रिंट फंक्शन कॉल होगा, इसकी लाइन एग्जीक्यूट होगी. पहली लाइन जब एग्जीक्यूट होगी इस प्रिंट फंक्शन की, तो उसमें कॉल है टू द प्रिंट फंक्शन एसोसिएटेड विद डी. तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन कॉल होगा. सो दिस इज कॉल ऑफ अ फंक्शन विद इन अ फंक्शन. सो प्रिंट फंक्शन के अंदर एक और प्रिंट फंक्शन है, लेकिन ये प्रिंट फंक्शन कॉल है टू डी. तो डी का जो प्रिंट फंक्शन है वो कॉल होगा, लाइन 1 विल गेट एग्जीक्यूटेड और जो वहाँ पे आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर उसके बाद ये सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होगी विच वुड प्रिंट द नेम एंड द फंक्शन विल एंड. ठीक है, सो दिस इज व्हाट विल हैपन हियर, राइट. एंड एट यस, सो एट द एंड ऑफ द डे जो प्रिंट होगा वो 0 0 0 नन प्रिंट होगा. ठीक है, यू आर राइट. Shayan, you're also right. Is the scope of the date struct within the person struct or public to? जी, वो public है, वो आप क्योंकि आपने अलग से उसका struct define किया हुआ है, that is public. ठीक है, तो वो scope उसका limit नहीं हुआ किसी भी सूरत. अच्छा जी, so let me just go over this. तो अब आपने, बिफोर आई ट्राई टू शो यू कि इसको कोडिंग उसमें स्कीम में आपने कैसे करना है, या एक इन्वायरमेंट के अंदर इसको मैं कोड करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से होगा. बिफोर आई डू दिस, तो ये क्वेश्चन एक आ रहा था कि आपने एक्सप्लिसिट कॉल अगर मैंने देनी है किसी पर्सन के साथ, मैंने कोई डेट एसोसिएट करनी है, तो फिर मैंने कैसे करनी है. फॉर एग्जांपल पर्सन पी मैंने डिफाइन कर दिया, लेकिन पर्सन पी की डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो 000 नहीं है, उसकी कोई डेट ऑफ बर्थ होगी. तो अगर मैं मेन प्रोग्राम के अंदर उसको चेंज करना चाहता हूँ, तो दिस इज व्हाट आई विल डू, p.d.day. ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, assign a value 13 to a variable date which has been defined in D, which is a struct date. ठीक है, but now it's also associated with person P. तो person P की जो डेट है, डे है, that will be changed to 13. ठीक है जी. p.d.month will assign the value to month. p.d.year would assign the value
of year to the date of the person P. और यहाँ पे मैंने person P का नाम जो है वो initialize किया है, and P dot print जो है now it will print all these three values. ठीक है, तो डॉट न्यूटेशन जो है ना वो आप 2 दफा आप यूज कर रहे हैं. डी डॉट डे अगर आप करेंगे तो वो डी की डेट को चेंज कर देगा, बट इट विल नॉट एसोसिएटेड विद पी. अगर आप उसको पी के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं तो पी डॉट डी डॉट डे आपको करना पड़ेगा. जी, सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट. पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की जो आपने एग्जांपल यहाँ पे दिया, दिस इज परफेक्टली फाइन. दिस इज लाइक वन वे ऑफ डूइंग इट. देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ असाइनिंग दिस वैल्यू, and I'll so one way which deal you have written here can also be done. बिल्कुल ऐसे किया जा सकता है. ठीक है, अब ये आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिट कॉल दी है. ठीक है, so this can be done. जी सर, इसके अंदर p जो है that's an instance of a person, right? yes, right. तो इससे पहले हमें मेन फंक्शन के अंदर ही p को इनिशियलाइज करना होगा, मतलब कि इंस्टेंस डिफाइन करनी होगी. जी जी, इंस्टेंस आपको डिफाइन करनी पड़ेगी पर्सन p. ठीक है, और मेन फंक्शन के अंदर फिर मेन फंक्शन के अंदर से हम p इंस्टेंस से पर्सन के का जब स्ट्रक्ट कॉल होगा उसके अंदर d इनिशियलाइज्ड है जी जी, व्हिच इज एन इंस्टेंस ऑफ डेट. राइट. और फिर उसके वेरिएबल को हम एक्सेस करेंगे. हाँ जी, बिल्कुल. उनके वेरिएबल्स को आप एक्सेस करके यहाँ पे आप उसके वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं p d डे. तो ये इस सीक्वेंस में ये आएगा और यहाँ पे आप उसके वेरिएबल को एक्सेस करके ओवरराइट कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा जी, हुसैमा. सर मैंने एक चीज पूछी थी कि ऐसा हो सकता है कि हम स्ट्रक्ट के अंदर वेरिएबल्स इनपुट करवा सकें. स्ट्रक्ट के अंदर वेरिएबल्स इनपुट करवा सके मतलब? जिस तरह सर एक स्ट्रक्ट पर्सन है, उसके अंदर आपने डेट और मंथ और ईयर डिफाइन किया था ना, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि सी इन करवा लें ये चीजें? हाँ, ये करवा सकते हैं आप, बिल्कुल करवा सकते हैं, सी इन करवा सकते हैं. और सर फिर जब हम सी इन करवा लेंगे तो फिर हम अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर जो हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया होगा उसमें उसको हम ये चीजें कर दें. जी जी जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल. जी ईशा. Sir, I wanted to ask कि ये जो आपने यहाँ पर असाइनमेंट किया, ये आपने हार्ड कोडिंग किया है. What if we add a constructor to date itself and then we use that to get all of these values initialized? Could you show that? जी. इसमें what you can do is कि आप एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं पर्सन का भी, राइट? और उसमें you can pass in the variables and within that you can write down these statements. ठीक है, तो उसमें आपको p डॉट, अच्छा उसमें जब आप पर्सन स्ट्रक्ट के अंदर जब आप लिख रहे होंगे, so I'll show you an example of that also. लेकिन okay, let me just come to this point. So let's say कि यहाँ पे ये मैंने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है. This is the constructor that I have defined for person. ठीक है, अगर इसको मैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर करना चाहता हूँ तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर ऑब्वियसली आई विल हैव सम पैरामीटर्स असाइंड हियर. और फिर यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ, डी डॉट डे. ठीक है, डी डॉट डे and I'll assign it to whatever parameter which I have passed. Let's say I can say z. ठीक है, और यहाँ पे मुझे पैरामीटर z पास करना पड़ेगा. ठीक है, so what will happen is इसमें मुझे p लिखने की जरूरत नहीं है, p dot d dot day लिखने की जरूरत नहीं है, because I am within the struct of person. तो इसलिए I don't have to tell the system कि ये d जिसको मैं रेफर कर रहा हूँ, this is something outside person, this is within person. Therefore d dot day assign the value z to that. Similarly d dot month and d dot year I can assign that. ठीक है, मुझे p dot d dot day उस वक्त लिखना है when I am operating outside the struct of the person, right? And you can also like do see in and see out. See in and see out भी किया जा सकता है. ठीक है, यानी आप यूजर से पूछ लें कि जी आप क्या वैल्यू डालना चाहते हैं, that can be done. ठीक है जी, Thank you. Okay. जी इब्राहिम.
Sir, for every new instance of person, do we need to have a new instance of date as well, or for every instance of person, D will work? Sorry, say it again. So for every new instance of person, जैसे P अभी है, if we have another instance, do we need to have another instance for date as well? Yeah, No, D no, will no, work for that. no, 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 no. Because you are saying कि जैसे ही आप एक instance of person define कर रहे हैं, automatically an instance of date will be generated through this definition. But won't it be the same instance? जी, initially it would be the same. Initially it would be the same. लेकिन अगर आप हर इंस्टेंस के लिए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पर्सन का यूज कर रहे हैं तो उस सूरत में यू कैन ओवरराइट द वैल्यूज. आई मीन आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज करें और उससे आप वैल्यूज को डिफर कर सकते हैं. या जो मैंने अभी आपको मेथड बताया कि आपने पी की जगह फॉर एग्जांपल एक नया इंस्टेंस आपने जनरेट कर दिया है पर्सन का विच इज क्यू, तो आप इस पी की जगह आप क्यू लिख देंगे. ठीक है, तो दिस वुड बी क्यू डॉट डे डी डॉट डे. तो आप वो क्यू के जो डेट है ना उसको ओवरराइट कर देंगे. राइट, सो यू कैन एक्चुअली डू दैट. ओके, so you can actually do this, right? Okay, जी ईमान. Sir, for instance, if we're taking input variables from the user, तो उसके अंदर जब हम object अगर CN में ले रहे हैं input, जब हमने object पहले declare कर दिया है तो उसके अंदर फिर हम parameterized constructor input ले रहे हैं, हम कैसे डालते हैं? आप सीन स्टेटमेंट्स पहले लिख लें और वेरिएबल्स के अगेंस्ट उनको असाइन कर दें और फिर उन वेरिएबल्स को आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में पास कर दें. ठीक है, यू कैन डू इट इन दिस वे. सर मतलब ऑब्जेक्ट CN के बाद डिक्लेयर करें ऑब्जेक्ट अगर हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं. हाँ बिल्कुल, आप बाद में यूज कर सकते हैं. बिल्कुल, दैट कैन बी डन. देयर इज नो इशू एट ऑल. ठीक है. अच्छा सर, अगर हम स्ट्रक्ट के अंदर ही CN लेने का कोई फंक्शन बनाए तो फिर कैसे वो वैल्यूज? वो भी हो सकता है. आप उसके लिए फिर आपको उस फंक्शन को एक्सप्लिसिट कॉल देनी पड़ेगी. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ गेट द वैल्यूज, वो भी हम करेंगे. ये जो सेटर्स और गेटर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वील डिस्कस दैट लेटर ऑन. आप एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जिसका मकसद सिर्फ वैल्यूज को लेना हो और उस फंक्शन को आप एक्सप्लिसिट कॉल दे सकते हैं. जैसे आप प्रिंट को एक्सप्लिसिट कॉल दे रहे हैं ना, आप कह रहे हैं पी डॉट प्रिंट कर रहे हैं. इसी तरह आप कह सकते हैं गेट द वैल्यूज, तो आप कैसे, ये फंक्शन का नाम है, तो आप कहेंगे पी डॉट गेट द वैल्यूज. तो जैसे ही आप वो फंक्शन कॉल करेंगे तो वो सीन वाली स्टेटमेंट्स रन होंगी एंड यू कैन इनपुट द वैल्यूज देयर. राइट, सो इट हैज टू बी अ सेपरेट फंक्शन. ठीक है. ओके, लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन रन दिस एग्जांपल in a while. अच्छा, यहाँ पे किसका था? माज का था कि ये वाला काम नहीं कर रहा. अच्छा, I'll just see कि ये क्यों काम नहीं कर रहा. ठीक है, I'll try to find out if there is a change to this. I'll just say tell you Maz about that. Huzaima का था. I hope I've answered this question. But right at the struct we have to define two dates, for example date of birth and date of employment, then we would have to define two instances. You are absolutely right. Agar so this is an interesting, this would add to the value here. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया, डेट मैंने डिफाइन कर दी, लेकिन अब एक ही पर्सन के साथ डेट ऑफ बर्थ भी एसोसिएटेड है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी एसोसिएटेड है. तो एक पर्सन के साथ ये दो डेट्स एसोसिएटेड हैं. तो मैं क्या करूँगा, मैं डेट का एक इंस्टेंस डिफाइन कर सकता हूँ बी डे विच इज़ बर्थडे, और दूसरा मैं डिफाइन कर सकता हूँ. तो आई विल हैव टू राइट डाउन एन अदर, I have to generate another date instance here. So that would be date joining, let's say date joining. So date birthday एक instance हो सकता है, date joining दूसरा instance हो सकता है. ठीक है, so they will be referring to two different things, right? So I hope this clarifies Zama your question. अच्छा जी, yes please explain. अच्छा वो मैं आपको बताता हूँ. जी
Okay. If there isn't any question, let me just try to set up the. Acha. If we have time. Let me just see. The time is over, but so what I can do is के time over हो गया. So what I can do is कि I can write down the complete code for this and I'll share that with you. और आप उसको run करें और उसमें अगर कोई issues आते हैं तो you can write an email to me और मुझसे आप बात कर सकते हैं या मुझे पूछ सकते हैं. Now it's the time is over. So next in the next class, if there are some other questions, I can take those questions and I'll also give you a complete example of this while doing it on the online compiler के ऊपर या Sublime के ऊपर इसको करके मैं आपको दिखा भी दूंगा, right? Okay. Okay, and you'll also have like practice in the lab as well. इस चीज़ के ऊपर जो है ना, so we'll make sure के lab session भी जो है वो complete हो जाए, right जी? So I'll upload the present lecture recording. इसकी भी slides मैंने upload पहले कर दी हैं. I'll upload them. थोड़ी सी modification थी उसके अंदर. I'll upload them again along with this complete code of the struct within struct. So you can go through this, try out various things and let me know कि क्या चीज़ काम करती है और क्या चीज़ काम नहीं करती. Okay जी. If there isn't any other question, we can end the session for today. Okay. Thank you. Thank you very much.